Hello students, मैं BL Sharma, maths sir, discussing chapter 6, class 10th mathematics, and the name of the chapter is triangles, and I'm discussing very important theorem, and this theorem is said to be, Thales theorem or basic proportionality theorem, or in short it is BPT, basic proportionality theorem. And the statement of the theorem is, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct point, means different points, then the other two sides are divided in the same ratio. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड में जनरली हर साल ही आती है, इसलिए इसको आपको ढंग से समझना होगा। देखिए, सी, first of all, we draw a circle. The circle is triangle ABC. Given a triangle ABC in which point P and Q are on side AB and AC respectively, such that PQ is parallel to BC, as shown in the figure. देखिए, इस ट्राइंगल एबीसी में एक लाइन सेगमेंट लाइन PQ है जो BC लाइन के पैरेलल है। ये देखिए, और हमें यह प्रूव करना है कि ये जो लाइन पैरेलल लाइन है PQ विच इज पैरेलल टू BC डिवाइड AB एंड AC इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनलिटी, मींस AP अपॉन PB शुड बी इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू AC, ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू AB एंड जॉइन B विथ पॉइंट Q एंड जॉइन C विथ पॉइंट PC। कैसे, देखिए, Q से इस AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और P से AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। परपेंडिकुलर मींस मेकिंग 90 डिग्री। इस P से AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज PM, एंड फ्रॉम पॉइंट Q यू ड्रॉ PQN परपेंडिकुलर टू द साइड AB। ऑल्सो यू जॉइन पॉइंट B विथ C विथ P एंड B विथ Q। ये हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। नाउ प्रूफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ फिगर में देखिए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, दिस ए, ये दोनों ट्राइंगल सेम ही है इसलिए दोनों का एरिया सेम ही होगा, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ, दिस वन P एंड दिस साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल QCP, QCP। ये यहां हमें एक कॉन्सेप्ट लिया है, वी हैव टेकन अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम नाइन्थ क्लास, द ट्राइंगल्स on the same base and between same parallels are equal in area। क्लास नाइन्थ में एक चैप्टर है, यहां पे जो इसका सेम बेस है वो सेम बेस कौन सा है, देखिए ये सेम बेस है, दिस इज सेम बेस एंड lying between same base PQ and PQ, this triangle C। देखिए ट्राइंगल PBQ and triangle PCQ, they are on the same base PQ and between same parallel lines PQ and BC, that is why equal in areas। क्लास नाइन्थ का थ्योरम था, triangles on the same base and between same parallels are equal in areas। That is why I have written here area of triangle PBQ is equal to area of triangle QCP, because these are two triangles on the same base PQ and between same parallels PQ and BC। So, and we know area of a triangle is given by half into base into altitude। आप ध्यान ये रखेंगे कि जो इनका साइड है ये प्रूव करना है, इसको हमको बेस लेना है। हियर इन ट्राइंगल बेस इज AP, सो परपेंडिकुलर इज QN। इन दिस साइड बेस इज AQ, perpendicular is PM, this one। Similarly, base is PB, perpendicular is QN, base is QC, perpendicular is what? PM। So write half into base is AP
into perpendicular is QN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ। बेस आपको लेना पड़ेगा PB, ऑल्टीट्यूड सेम ही रहेगा, इनटू QN। आपने देखा, either you are taking base PB or you are taking base AB, the altitude is same, that is QN। And right hand side, half into base AQ, the perpendicular is PM, upon for QCB triangle, base is QC, the perpendicular or altitude is same, that is PM। अब आपका काम 99% हो चुका है। देखिए कैसे, हाफ इज कैंसिल बाय हाफ, QN is cancelled by QN, half is cancelled by half, PM is cancelled by PM. What is left? PM upon PB. Sorry, AP upon PB. See? And AQ upon QC. यही तो प्रूव करना है। AP upon PB is equal to AQ upon QC. So you can write AP upon PB is equal to AQ upon QC and hence proof. That's all for this theorem. Students, this theorem is very, 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 very important. आप इसको अभी 4 बार रिवाइज करिए, बहुत सिंपल है। वो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, कन्वर्ट्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मींस जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था उसका जस्ट इसमें कन्वर्स है, उसका उल्टा है। क्या क्वेश्चन है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ अ लाइन डिवाइडेड बाय एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए, एक ट्राइंगल है और ये एक लाइन DE है। ये DE लाइन AB और AC को क्या करती है? सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मींस AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। तो बताना ये पड़ेगा कि ये जो लाइन DE है वो BC के पैरेलल है। ये देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये गिवन था D इज पैरेलल टू BC, और प्रूव ये करना था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन C। इसमें जस्ट उल्टा है। व्हाट वाज गिवन इन BC BPT, इट इज हियर वी हैव टू प्रूव, एंड व्हाट वी प्रूव देयर, दैट इज गिवन इन कन्वर्स ऑफ BPT। इस थ्योरम को हम बेसिक मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। देखिए, या तो ये जो लाइन डी है, हमें पता है कि किसी एक पॉइंट से एक लाइन के पैरेलल एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। मींस ये जो पॉइंट डी है, इस पॉइंट से BC के पैरेलल केवल एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, एक से ज्यादा लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती। तो हमें पहले ये मान के चलें कि DE इज पैरेलल टू BC, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन मान लीजिए अगर पॉसिबल ये है कि DE BC के पैरेलल नहीं है, तो इस केस में हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि कोई पॉइंट है, एज्यूम डी इज नॉट पैरेलल टू BC, देन ड्रॉ अ लाइन DE डैश दैट इज पैरेलल टू BC। अगर DE पैरेलल नहीं है तो एक लाइन DE डैश है, D से एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और एक हमने AC पे एक E डैश पॉइंट लिया और हमने कहा कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है। इफ DE is not parallel, then let DE dash is parallel to BC। प्रूव ये करना है कि DE ही पैरेलल टू BC है, DE डैश। सी हाउ टू प्रूव। प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल ABC DE डैश इज पैरेलल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन। लेकिन
बेसिक बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, डिवाइड द रिमेनिंग टू साइड्स इन द सेम रेशियो, सो वी कैन से इट मीन्स एडी अपॉन डीबी। देखिए डीई डैश पैरेलल है, और जैसे ही ये पैरेलल हो जाती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई डैश अपॉन ई डैश सी। लेकिन बाय बीपीटी से है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन फर्स्ट क्या कहता है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। देखिएगा दोनों ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यहां पर आपको पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, इट इज गिवन। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि हमने कंसिडर ये किया है कि डी डैश इज पैरेलल टू बी सी। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है फर्स्ट एंड सेकंड का, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। अब क्या करें, दोनों तरफ वन ऐड कर दीजिए, एडिंग वन बोथ साइड। ये लिख दिया। अब दोनों तरफ वन ऐड करिए, लेफ्ट हैंड साइड प्लस वन, राइट हैंड साइड प्लस वन। एलसीएम लीजिए, टेक एलसीएम ई सी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड टेक एलसीएम ई डैश सी। सो ए अपॉन ए सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी। ये हमने एलसीएम लिया। ए और ई सी को ऐड करिए, देखिए ए प्लस ए सी दैट इज ए सी। राइट हैंड साइड में ए डैश प्लस ई डैश सी को ऐड करिए, ए डैश प्लस ई डैश सी दैट इज ऑल्सो ए सी। सो ए सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई डैश सी। दोनों तरफ ए सी और ए सी कैंसिल हो जाएंगे, यू कैन कैंसिल आउट, मीन्स ए सी एंड ए सी हियर, सो व्हाट इज लेफ्ट, ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। अब देखो यहां पे ये कहता है कि द डिस्टेंस, सी हियर, ई टू सी, द डिस्टेंस फ्रॉम ई टू सी इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ई डैश टू सी। ई से सी का डिस्टेंस और ई डैश से सी का डिस्टेंस सेम ही है, और ये तभी 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 पॉसिबल है जब ई और ई डैश पॉइंट दोनों कंसाइड करते हो, एक ही पॉइंट हो। इट मीन्स यू कैन से दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द पॉइंट ई एंड ई डैश कंसाइड विद ईच अदर, मींस सेम पॉइंट्स आर देयर। ये दोनों पॉइंट सेम है, कंसाइड का मतलब है दोनों पॉइंट एक ही है। आइदर यू कैन से ई टू ई डैश और ई डैश टू ई। ई को आप ई डैश कह सकते हो, ई डैश को आप ई कह सकते हो। तो हमने क्या कंसिडर किया था यहां पर, हमने किया था डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। इस ई डैश की जगह आप ई लिख दीजिए, बिकॉज ई एंड ई डैश आर सेम पॉइंट्स। So now but DE dash is parallel to BC, therefore DE is also parallel to BC and hence proved। हमने E dash की जगह E लिख दिया है। That's all for this theorem। Students, the whole chapter triangle is based on the two theorems, the basic proportionality theorem and converse of basic proportionality theorem। सिमिलरिटी के अलावा ये जो थ्योरम है पूरी एक एक्सरसाइज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो थैंक यू।